Yes, sir. Yes, Tiwarji. नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार एवरीवन। ईपीएस सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी के दूसरे हिंदी के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरु एवं सभी गुरुजनों को, भगवान श्री गणेश को, आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को आपके सहित प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ कल का सेशन आप लोगों ने सुना होगा। सर ने उसकी वीडियो भी आपको अपलोड की थी ग्रुप में। अगर कहीं कुछ कमी रही होगी तो शायद अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि यदि कोई शंका कोई संदेह उसमें रहा हो तो आप इस समय पूछ सकते हैं, तब तक जब तक कुछ लोग और इसमें शामिल हो जाएं। आपका स्वागत है। Yes, Pradeep sir, Sunil ji, Vaghar ji, Kavita madam, you want to ask anything by the time other students join? If you have any doubt in the previous session, you can ask Tiwarji, because that session contained many theory portions. So if you have any doubt, any clarifications needed, you can ask. Of the previous session's doubts, you can ask. Once the session is over, you can ask any doubt in this also. Tiwarji will definitely will answer the question, and it's suppose if it is needed, I will also explain. But I will explain only in English. Tiwarji will explain in Hindi. Any doubt, anything you want to ask, you can ask. Sir, I'm not part of the group, sir. So I will send you message and then you can add me to the group and then I will go through the recording again and then Okay. maybe next week I'll ask. Okay. We have not attended the, yesterday sessions. No, yesterday I attended, sir. Okay. But I want to, listen to the recording again, sir. No, that recording, that link is already, oh, you are not having that link. Yes, sir. I will If you go message to, you, sir. Yeah, and so no that, problem. You can you can message to Tiwarji also, to me also, not an issue. That link can be sent to you, madam, not an issue. But of course, now it has been made public. If you go to EPS System of Astrology, EPS System of Astrology YouTube channel, go to EPS System oh, of Astrology okay, YouTube channel. It is okay, available for the public from the evening. I made it available. So there also okay, you can watch. It will be a okay, playlist. So all the videos will be uploaded in that. So you can anytime you can watch. Not required to join the group, madam. okay, Yeah. okay. Yeah, Yes, yeah, madam. okay. Definitely. So in yesterday's session, if you have any doubt, if you have anything, you can ask Mr. Pradeep. I don't know who is ones plus. Okay, Sunil ji. सर अभी तो डाउट नहीं Sorry, sir. भी है नहीं सर कोई Yes, sir. सर मैं कह रहा हूँ अभी कोई डाउट है नहीं है सर पिछले सेशन को देख थैंक यू सर। Good. Hey, Gayatri madam. Thanks, madam. Thanks for changing. I think Gayatri madam is joining for the first time. I hope so. Right? Yesterday's session did not join. Good evening, sir. Good evening, madam. You have not Yes, joined sir. yesterday's Yesterday, session. yes, sir. So I was just thinking to join, but suddenly I had some urgent work, so I I couldn't understand. join No it. problem, madam. You can watch the video recording also. Go to Yes, EPS sir. System of Astrology, and there you can find that in the sessions video in the channel on Yes, sir. playlist will Sir, be there. You can watch. yeah, I watched, sir, but I didn't understand. Actually, I'm doing North system, and it's totally based on South. Oh, you're talking about the birth chart. Yeah, chart. Yes, sir. So I will just, I just again just go through it and then try to yeah, understand. I understand. You're talking about the uh, South Indian chart, that is KP chart. Yeah, That is South the Indian chart, sir. Yes, sir. North Yes, sir. Indian chart. You are used to it, right? Yes, sir. Yeah, yeah.
The thing is, That is the actually, honestly speaking, madam, South Indian chart it is not exactly South Indian. It is the one as per the zodiac how it is present. Instead of in circle form, it is given in the in square shape for the easy yeah. understanding, right? Mhm. But the advantage of the South Indian chart or KP chart, it means no, it is not required. You should have a Rasi chart separately, Bhavachalit chart separately. But if you take North Indian chart, you to have Rasi chart and Bhavachalit chart separately. Two charts you should have to which Mhm. planet is occupying which Rasi and which Bhava. Some people they are not considering the Rasi chart, they take only the Bhavachalit chart. The Bhavchalit, right. disadvantage with the Bhavachalit chart is that in the Bhavachalit chart, any planet posted within the same Bhava but in two different signs, they will also be considered as they are conjoined. And I'm trying to also, understand them both, right, sir? yeah, so as well as the planet posted in which Rasi's importance is been given like Vedic Mhm. system in our EPS, Rasi's importance also the Rasi Lord and their Karagator are important. But in Bhavachalit chart, if you see North Indian chart, you will not be able to identify which Rasi it is present. Mhm. So in order to avoid such thing, if you try to understand, follow that KP chart or the South Indian chart, it will be easier. Namaskar, madam. So that it will be in a clockwise direction. I mean, it will be there. But in the North Indian chart, it is anti-clockwise, right? And Yes, sir. Yeah. moreover, in Rasi chart, that signs are fixed. That Rasis are fixed because in natural zodiac also, Yeah, I Rasis are know these fixed. basic things, sir. I know already. Yeah, so When I that was way, if you when I was start studying following, about no, KP. yes, madam. So that Yeah, will be more. that's why I'm telling you, I will just go through it again and Please, just try to understand. And please, thank you madam. so much, sir. Thank you so Yeah, much, sir. definitely, madam. So I think Tiwari I think we can start doing because now students started coming. If anybody wants to ask anything to Tiwari in Hindi, you can ask about the previous sessions. Any doubt, you can ask. If you start asking questions, it means that you are going through that or you are trying to understand, right? ठीक है सर। Yes, मैं sir, समझता please. हूँ कि कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं है, तो हमें फिर आज के सेशन में आगे बढ़ना चाहिए। क्या आगे बढ़ें? ठीक है, मैं आपकी आज्ञा से आगे बढ़ता हूँ। कल हमने प्लैनेट्स के बारे में, राशि के बारे में, नक्षत्र के बारे में, उपनक्षत्र के बारे में मतलब जो है ना जानकारी दी थी। और यदि मैं उसे कंक्लूसिवली मतलब संक्षिप्त में अगर कहूँ तो कोई भी ग्रह अपने पूर्ण सिग्निफिकेशन को तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसे भाव के नक्षत्र और भाव के उपनक्षत्र के सिग्निफिकेशन सहित न पढ़ा जाए। नंबर एक बात। दूसरी बात, बिना राशि के, बिना कंज्वाइंट जो प्लैनेट युति कर रहा है उसके, बिना उस प्लैनेट के जो उसे जिसकी दृष्टि उस पर पड़ रही है उसके सिग्निफिकेशन के, किसी भी ग्रह को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके सिग्निफिकेशन अधूरे हैं। तीसरी बात हमने ये पढ़ी कि हमने जो स्टार लॉर्ड है यानी नक्षत्र है किसी ग्रह का, वो चूंकि नक्षत्र भी एक ग्रह है तो और वो अपने नक्षत्र के अनुरूप चलना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में जब तक हम नक्षत्र के नक्षत्र ग्रह को और उपनक्षत्र के नक्षत्र ग्रह का आकलन नहीं करते हैं उसके साथ, तब तक उस ग्रह के पूर्ण सिग्निफिकेशन अधूरे हैं। और अंत में एक प्लैनेट के टोटल सिग्निफिकेशन पढ़ने के लिए हमको लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे पढ़ने चाहिए। तो बाएं से दाएं भी एक ग्रह किसी भाव का स्वामी है, किसी भाव में बैठा हुआ है, किसी भाव का नक्षत्र है और किसी भाव का उपनक्षत्र है। ये उस ग्रह के स्वयं के अपने सिग्निफिकेशन है, भाव सिग्निफिकेशन है, भाव समूह है। आप उसे पॉसिबल सिग्निफिकेशन भी कह सकते हैं, साइन सिग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के मुझे कहना है कि उस ग्रह का, जो ग्रह
किसी भाव में बैठा हुआ है, किसी भाव का स्वामी है, किसी भाव में बैठा हुआ है, किसी भाव का नक्षत्र है और किसी भाव का उपनक्षत्र है, ये उस ग्रह के स्वयं के भाव संबंध हैं। तब तक जब तक उसे उसके भाव नक्षत्र और उसके भाव उपनक्षत्र को उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक उस ग्रह के सिग्निफिकेशन केवल भावेश और भाव में होने पर ही पूर्ण नहीं माना जा सकता। एक दूसरी बात हमने इसमें ये भी कही कि जब हम किसी ग्रह के ऊपर से नीचे जब हम उसके संबंध पढ़ते हैं, तो उस अवस्था में ग्रह किसी नक्षत्र में यात्रा कर रहा होता है। चूंकि जिस नक्षत्र में यात्रा कर रहा होता है वो ग्रह भी एक ग्रह है, तो वो नक्षत्र भी एक ग्रह है, तो वो भी अपने नक्षत्र के अनुरूप कार्य करता है। तो ऐसी अवस्था में नक्षत्र को भी पढ़ा जाना चाहिए। उसी प्रकार उपनक्षत्र के नक्षत्र को भी पढ़ा जाना चाहिए। इस तरह से हम 5 लेवल पर, और कई बार हम देखते हैं कि वो ग्रह स्वयं के ही नक्षत्र में यदि है तो हम उसके सब लॉर्ड उप नक्षत्र, मतलब जो है ना, अगर बहुत क्लियर अगर कहा जाए तो सब लॉर्ड, आई मीन उस ग्रह का सब लॉर्ड भी पढ़ा जाना चाहिए। तब उस ग्रह की पूर्ण सामर्थ्य का आकलन किया जा सकता है। ये हमने कल पढ़ा था। अब हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि जब हम उसके स्वयं के संबंधों के साथ उसे पढ़ते हैं, तब उस ग्रह को दूसरे ग्रह भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला प्रभावित करता है उसका राशि स्वामी, दूसरे उसको प्रभावित करता है जिसके साथ युति कर रहा है, तीसरे उसको प्रभावित करता है जो ग्रह उसको देख रहा है, चौथे उसको प्रभावित करता है जो उस ग्रह की राशि में बैठे हुए ग्रह हैं, और पांचवा एक ग्रह है जो छाया ग्रह है। यदि कोई छाया ग्रह किसी ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, चूंकि उसकी ग्रह की 2 राशियां हैं, और दूसरी राशि में यदि कोई और ग्रह बैठा हुआ है, यानी एक, जैसे हम अगर उदाहरण के तौर पर कहें, मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल राशि की राशियां, मंगल ग्रह की राशियां हैं। यदि एरिस राशि में राहु बैठा हुआ है और यदि वृश्चिक राशि में गुरु बैठा हुआ है, तो उस स्थिति में राहु गुरु से युति करता है। इसे हम अप्रत्यक्ष युति कहते हैं। इस अवस्था में राहु, जब हम राहु को पढ़ेंगे तो राहु फर्स्ट प्लैनेट है, पहला प्लैनेट है, और चूंकि जिसकी राशि में बैठा हुआ है, यानी मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो मंगल दूसरा ग्रह है। लेकिन जब हम उसी कुंडली में मंगल को पढ़ेंगे, तो जब मंगल पहला ग्रह है और राहु दूसरा ग्रह है, ये हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। तो अब हम मतलब जो है ना, इस जो ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम उनको सपोर्ट ग्रह कहते हैं। तो सपोर्ट ग्रह मैंने आपको बताया, वो सपोर्ट ग्रह 5 तरह से मतलब जो है ना असर डालते हैं। पहला ग्रह राशि का, दूसरा ग्रह जो उससे युति करता है, तीसरा ग्रह वो जो उसे दृष्टि डालता है, चौथा ग्रह वो जो उसकी राशि में बैठा हुआ है, और पांचवा ग्रह वो जो छाया ग्रह है। और छाया ग्रह अप्रत्यक्ष युति भी कर सकता है, जो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ अब हम उसके आगे सब चलते हैं, तो हमें ये जानना बहुत अनिवार्य हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर घटना के लिए, किसी विशेष घटना के लिए, हम चूंकि किसी भी कुंडली में 12 ग्रह हैं, 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, और वो 12 के 12 भाव में 27 नक्षत्र हैं, यानी 249 पॉइंट हैं जो सेंसिटिव पॉइंट हैं, जिसमें कोई भी ग्रह या तो उसमें मतलब उसमें से किसी भी सेंसिटिव पॉइंट पर यात्रा कर रहा होता है, लेकिन ठीक उसी तरह भाव भी उन्हीं 249 पॉइंट्स में से किसी में यात्रा कर रहा होता है। तो ऐसी अवस्था में जब हम उसके सिग्निफिकेशन को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें उस ग्रह के स्वयं के भावों को पढ़ना होता है। तो चूंकि ग्रह उस कुंडली में मतलब जो ग्रह के जितने भी सिग्निफिकेशन है वो तो सिमिलर ही रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। उदाहरण के तौर पर मंगल, अगर नेचुरल जोडियाक में आप देखें, काल पुरुष में अगर आप देखें, तो पहली और 8वीं राशि का स्वामी है, तो
तो पहली और आठवीं का वो किसी भी उसमें इवेंट के लिए देखेंगे तो मंगल 1 और 8 भाव का ही स्वामी रहेगा। लेकिन यदि हम उसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पहला भाव फेवरेबल है, वो अनुकूल भाव है, 8वां भाव प्रॉब्लम पैदा करने वाला भाव है। तब तक जब तक 1 को सपोर्ट मिलता है तो फेवरेबल हो जाएगा, 8 को सपोर्ट मिलता है तो अनफेवरेबल हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि हमें किसी भी ग्रह के स्वयं के अनुकूल और प्रतिकूल ग्रहों भावों का आकलन करना होगा। वो आकलन घटना के आधार पर होगा, न कि जनरल आधार पर। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं, अगर हम शादी का भाव अगर हम देखते हैं तो शादी के भाव में 7वां भाव मूल भाव है, 6ठा भाव उससे 12वां भाव है जो उसका विरोध करता है, जो उसको सपोर्ट नहीं करता, उसका समर्थन नहीं करता है। तो इसी तरह से 5वां भाव प्रोजनी का भाव है, लेकिन 4था भाव उसका सपोर्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हम जब आकलन करते हैं, लेकिन 5वां भाव 7वें भाव को सपोर्ट करता है, 7वां भाव 5वें भाव को सपोर्ट करता है। तो हमें जब हम किसी भी ग्रह की स्वयं के भाव संबंधों का आकलन करेंगे तो हम घटना के अनुरूप करेंगे। यानी घटना क्या है, जैसे मैं आपको अभी एक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उस चार्ट में हम शादी के घटना का मतलब जो है ना आकलन करना चाहेंगे तो उससे आपको ये बात क्लियर होगी। तो मैं उसमें सबसे पहले आपको 2 तरीके से हम आकलन करते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम मूल भाव को लेकर चलें, उसके सपोर्टिव भाव को लेकर चलें, इसी तरह से उसके मूल प्रतिकूल भाव को लेकर चलें, उसके सपोर्टिव भाव को लेकर चलें। दूसरा तरीका ये है कि हम इन जनरल उसको मतलब जो है ना एक प्रत्येक भाव देखें, वो लगन के अनुकूल है या प्रतिकूल है, साथ में वो उस घटना के अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो जैसे कल त्रिकोण के माध्यम से मैंने बताया भी था आपको कि कोई भी ग्रह यदि घटना से संबंधित प्राइमरी ग्रह किसी अनफेवरेबल भाव में अगर बैठा हुआ है उस इवेंट से, उस घटना से, लेकिन वो भाव लगन के अनुकूल भाव है तो वो पूर्णतया प्रतिकूल नहीं होता। मैंने आपको अगर ध्यान हो आपको तो मैंने कैंसर लगन के को आधार मान करके शुक्र यानी लिब्रा यानी तुला राशि के स्वामी शुक्र जो 4थे भाव का और वृष राशि जो उसका 11वां भाव है उसका स्वामी है। लेकिन अब अगर आप शुक्र को स्वयं में देखें तो शुक्र 4थे भाव का और 11वें भाव का स्वामी है, लेकिन 4थे भाव से 11वां भाव 8वां भाव है। तो ऐसी अवस्था में 4था भाव जरूर समस्याएं मतलब फेस करेगा, लेकिन 11वां भाव लगन के लिए एक प्रतिकूल अनुकूल भाव है, तो उस स्थिति में लगन को उससे कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो हमें मतलब जो है ना जो भाव लगन के अनुकूल हैं, भले ही वो घटना के प्रतिकूल क्यों ना हो, तो उस अवस्था में वो पूर्ण रूप से लगन के प्रतिकूल नहीं होंगे। ये बात हमें मतलब जब हम किसी भी ग्रह की सामर्थ्य को जज करते हैं तो हमें उस समय इस बात को ध्यान में रखना होगा। मैं एक चार्ट आपके सामने खोलना चाहता हूं। नो No. Where you click no and create new chart. You want to quit? No. Click no. Sorry, should come and share, no sir. No, sir. Already shared. Chart Yes, is sir. shared.
No, on the program software it is saying, do you want to quit EPS StarSoft? No, click no. 1 minute, sir. This one chart I want to share, sir. No, sir. You please click no, then you create the chart. Okay, First, okay. it is asking you want to quit. Click no. No, you look at example 2, no, in the screen. You can see that pop-up quit. Sir, listen, sir. Actually, sometime this give me problem, sir. You are seeing that example 2 screen, no, sir? Yes, sir. Yeah, you can see that pop-up window, no? Do you want to quit EPS StarSoft? Click no. EPS window. No, sir. It is not coming here, sir. It is showing, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 minute, sir. Here is You click. this, sir. No. You have, I think you have come out. 1 minute, sir. Dr. Vikas ji, kindly mute. Yeah, thank you. Tiwari ji, you have closed the program instead of quitting. I think instead of clicking no, I think you would have entered. Sir, yes, sir. Yes, sir. 1 minute, sir. 1 minute, sir. Okay, you run I the have program and taken- create the chart. Now I have taken, sir. This is this one and share, sir. This is the chart, sir, which I want to share. Actually. Yeah. Just a minute, you check it. Yes, sir. Date of birth is 3rd June 1981, मतलब 3 जून 1981। जन्म का समय है 5:23। स्थान है सेलम। ये वृष लगन की कुंडली है। मैंने एक्चुअल में ये इसलिए इसमें इंग्लिश में इसको इसलिए खोला, मुझे इसमें थोड़ी सी दिक्कत। You can change to Hindi, no, sir? 1 minute, sir. Yeah. No. Don't close it. You go to options. Go to option settings. सर इंग्लिश इज ओके अगर सबको कोई दिक्कत नहीं तो। No, you had to ask everyone. I don't know. Everybody is fine with English or you want to change to Hindi? Sir, there is no need to change it in Hindi, sir. It's okay. No problem. We can understand what is given. Hindi and English hardly Yes, makes sir. any difference. Sir, English Everyone is is- better. English is Okay. better. It's better. Yes, sir. No. It's English is better. नहीं सर, क्या हिंदी वाले सज्जन भी मतलब जो है ना सर इसको सबको ठीक है सर। आप आगे चलिए। सबको ठीक है। प्लीज कैरी ऑन। दिस इज ओके। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। राइट राइट। Yeah. The only change, even you change. No, you have to wait, sir. Just to come out. Go to that page. 1 minute, sir. Yeah. Yeah, back. Why you are clicking refreshing? Back home. Yeah. Yes. आपकी सुविधा के लिए मैंने No, you can show it below, sir, because that North Indian chart is being hidden, na? Some people may like that North Indian chart. राइट सर, राइट सर, राइट सर। Yeah, you can little below. Yeah. भाव चलित आई हैव सर, भाव चलित मैंने इसमें खोला हुआ है। हिंदी के लोग जो भाव चलित है उसमें जो अपना केपी का चार्ट है वो भाव चलित से टैली करता है, इसलिए मैं भाव चलित चार्ट इसके लिए मैंने खोला हुआ ताकि हिंदी पीपल जो है उसको चेक कर सके, देख सके। तो मैं वापस मुद्दे पर आ जाता हूँ। मेरे कहने का आशय इस बात से था कि हम सबसे पहले प्लेनेट की सेल्फ सामर्थ्य है उसको चेक करते हैं। उसे 2 तरीके से हम चेक कर सकते हैं। पहला तो हम ये कि हम उसे मूल भाव से लेकर चलें, दूसरा ये एक तरफ से देखते चले जाएं। जिसमें आपको कॉम्पिटेंस है, जिसमें आपको अच्छा लगता है उस तरह से हम इसे देख सकते हैं। लेकिन ईपीएस में जब हम किसी चार्ट को पढ़ने जाते हैं
तो हम पहले वैदिक सिस्टम को उपयोग करते हैं कि मतलब जो है ना, जैसे उदाहरण के तौर पर जातक शुक्र लगन का स्वामी है, शुक्र पहले और छठे भाव का स्वामी होकर के लगन में बैठा हुआ है, लेकिन मरकरी के भाव में यानी जेमिनी के साइन में है, और जेमिनी के साइन में होने के साथ साथ उसके स्वामी मरकरी से युति कर रहा है, तो मरकरी दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो शुक्र की प्लेसमेंट इसके हिसाब से ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, शुक्र को मार्स प्रभावित कर रहा है उसकी राशि में बैठकर। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो किसकी राशि में बैठा हुआ था, तो हमने देखा कि शुक्र जो है वो मरकरी की राशि में यानी बुध की राशि में बैठा हुआ है। बुध दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठा है, तो कोई भी अनफेवरेबल भाव यानी 6, 8, 12 भाव से इसका संबंध नहीं है इस समय तक। तो वीनस की प्लेसमेंट शुक्र है, शुक्र की प्लेसमेंट फेवरेबल है। दूसरी बात, शुक्र को Theology, I'm sorry, Theology, sorry to interrupt. You can use the mouse or pen now so that we can easily right, sir, identify right, sir. because Yes, sir. at least no sir, here on the screen itself you can find on the bottom left hand side you will have a pen that also you can use, or you can use your pen. Yeah, this is at least cursor is fine. But if you have a pen, that will be better. Otherwise, use the Yes, sir. cursor, sir. Without using cursor, if you talk, then they may not be able to identify. I understand, sir. My cursor actually, I am feeling Yeah. something. No, your cursor is visible. Yeah. Sir, let me try with this only. Yeah. Okay. अब हम यानी सबसे पहले शुक्र किस भाव में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, तो शुक्र लगन में ही बैठा हुआ है, लेकिन बुध की राशि में बैठा हुआ है। बुध 2 और 5 का स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो शुक्र की प्लेसमेंट इस समय तक ठीक है। शुक्र की राशि से पहले शुक्र को कोई ग्रह देख रहा है क्या? शनि 10वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। शनि 9वें और 10वें भाव का स्वामी होकर 5वें भाव में बैठा हुआ है और 5वें भाव से शुक्र को देख रहा है, तो अभी तक भी ये 8 और 12 से कनेक्टेड नहीं है, तो ये अभी तक अनुकूल स्थिति में बैठा हुआ है। इसके अलावा उसको और कोई ग्रह नहीं देख रहा है, लेकिन इसकी राशि में मंगल जो 7 और 12 भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठा है, लेकिन ये वृष राशि में बैठा हुआ है, तो वृष राशि में बैठने के कारण इसे वृष राशि का भी असर इसको पड़ेगा, और चूंकि वृष लगन और 6 का स्वामी होकर के लगन में बैठा हुआ है, तो लगन के प्रति मंगल का 12वें भाव और 6ठे भाव से संबंध बनता है, लेकिन 7 और लगन का संबंध जो है वो अनुकूल संबंध है। हम चूंकि चार्ट शादी के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए 7वें भाव को मेन भाव समझ करके ये बात हमको पढ़ते जाना है। इसमें सूर्य लगन में बैठा हुआ है, सूर्य 4थे भाव का स्वामी है, सूर्य 4थे भाव का स्वामी होकर के लगन में बैठा हुआ है। चंद्रमा जो है वो 3रे भाव का स्वामी होकर के लगन में बैठा हुआ है। कृपया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राहु चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जब हम राहु को पढ़ेंगे तो राहु फर्स्ट प्लैनेट है और चंद्रमा सेकंड प्लैनेट है, लेकिन जब हम चंद्रमा को पढ़ेंगे तब चंद्रमा पहला प्लैनेट है और राहु सेकंड प्लैनेट है। हम दोनों का साथ में आकलन करते हैं, पहले स्वयं का और उसके बाद दोनों ग्रहों का। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने ये पॉपअप देख रहे होंगे आप, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, मून जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें राहु विद इन ब्रैकेट है, क्योंकि ये इस समय सेकंड प्लैनेट है। लेकिन जब हम उसके राहु को पढ़ते हैं तो राहु के नीचे मून जो है ना विद इन ब्रैकेट है, तो राहु के लिए मून सेकंड प्लैनेट है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे इस मुद्दे पर। अब हम वापस देखें तो 7वां भाव मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में है, शनि के नक्षत्र में है, सूर्य के उप नक्षत्र में है। आवश्यकता पड़ने पर अगर यहाँ पर कई ग्रह हों तो हम मरकरी को इसमें कंसीडर नहीं करते, लेकिन
हम जब ग्रह को कंसीडर करते हैं तो मैंने बोला था कि ग्रह किसी राशि में है, किसी नक्षत्र में है, किसी उपनक्षत्र में है, और यदि ये कंटिन्यूअसली मून के इस नक्षत्र में होता सपोज और मून के ही उपनक्षत्र में होता, तब हम उसके सब लोड को भी कंसीडर करते हैं। उसका कारण क्या है कि यदि सूर्य को मार्स मंगल सपोर्ट कर रहा हो तो उस स्थिति में सूर्य को मंगल की सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि मंगल सूर्य का सब लॉर्ड। यहाँ हम देख सकते हैं कि सूर्य और मंगल जो है वो दोनों युति किए हुए हैं, और चूंकि युति करने के कारण युति किए हुए और साथ में उसका रूलर है, तो ऐसी अवस्था में मंगल का सूर्य पर प्रभाव अधिक रहेगा। इसमें हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी होगी, जो ग्रह जिनके ग्रह नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं होता उसे फ्री प्लैनेट हम इस भाषा में बोलते हैं। यानी जैसे मरकरी है, मरकरी के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है तो इसलिए मरकरी फ्री प्लैनेट है और हमने इसे स्टार से इंडिकेट किया हुआ है। सिमिलरली जुपिटर को हमने स्टार से इंडिकेट किया हुआ है। तो मरकरी, जुपिटर, वीनस जो है ये फ्री प्लैनेट है, मीन्स इनके नक्षत्र में कोई ग्रह यात्रा नहीं कर रहा है। तो चूंकि इनका प्रभाव कोई दूसरा ग्रह नहीं ले सकता है, तो ऐसी अवस्था में मरकरी स्वयं में सक्षम है। तो मरकरी अपने घरों का प्रभाव जो है वो स्वयं देगा। ये हमें जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। आइए अब मैं आपको अगर हम डेस्टिनी के लिए पहले पढ़ें, चूंकि किसी भी भाव की डेस्टिनी उस भाव का पूरा ब्यौरा लेखा जोखा देता है। तो इसमें मार्स भाव स्वामी है, शनि नक्षत्र स्वामी है और सूर्य उपनक्षत्र स्वामी है। इन तीनों से सातवां घर सुसज्जित है। मार्स का प्रभाव, शनि का प्रभाव और सूर्य का, इनका मिला जुला प्रभाव उसके वैवाहिक जीवन का पूरा प्रभाव है। तो इसलिए हमें मार्स को भी देखना होगा, शनि को भी हमें देखना होगा, सूर्य को भी देखना होगा, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रभावी मंगल और सन है, सूर्य है। तो इनका हमें ज्यादा, मतलब इनको हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो अगर हम इसमें देखें तो मार्स, उससे पहले मतलब जो मैं आपको इनके फेवरेबल और अनफेवरेबल भावों के लिए ले चलता हूं, ताकि हमें फिर आप बाद में उसकी डिटेल पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखें तो केतु 9वें भाव में बैठा है, तो 9वां भाव 7वें भाव को सपोर्ट करता है, तो ये फेवरेबल हाउस है। तो 9वें भाव से जब वो बाएं से दाएं यात्रा करता है तो वो 4, 8, 12 का नक्षत्र है। आप यहाँ पर भी अगर देखें तो केतु 4, 8 और 12 का नक्षत्र है। तो 4, 8, 12 मोक्षकार का भाव है, और सब लॉर्ड जो है उसका 10th हाउस है। तो 9th हाउस को आगे सपोर्ट नहीं मिलती है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं कहा जा सकता, प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है वो 9th हाउस है, वो फेवरेबल है, स्वयं में इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यदि इसे कोई फेवरेबल गृह सपोर्ट करेगा तो ये मदद करने को तैयार हो जाएगा। ये बात हम अपने दिमाग में रख कर चलते हैं। चूंकि जहां अनुकूल और प्रतिकूल का हम अपने मन में मतलब जो है विचार करते हैं, तो प्रतिकूल ग्रह वो ग्रह प्रतिकूल है जिसमें अनुकूल भाव नहीं है। लेकिन जिस ग्रह के पास अनुकूल और प्रतिकूल भाव हैं वो मिक्स प्लैनेट है, मिला जुला ग्रह है। लेकिन जिस प्लैनेट में जिस ग्रह के पास केवल फेवरेबल भाव हैं वो फेवरेबल प्लैनेट है। तो फेवरेबल को अधिमानता दी जाती है। सपोर्ट प्लैनेट उसे कितना असर डालेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो उसकी ग्राह्यता कितनी है, उसके आधार पर। जैसे उदाहरण के तौर पर केतु, अगर हमको केतु को ही हम उदाहरण लेकर चलें तो केतु 9वें भाव से फेवरेबल है, 4, 8, 12, 10 भाव जो हैं ये अनफेवरेबल भाव हैं। यदि इसे किसी अनफेवरेबल भाव की सपोर्ट मिलती है तो इस अनफेवरेबल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन यदि इसे किसी फेवरेबल भाव की अगर सपोर्ट मिलती है तो इसे फेवरेबल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर केतु शनि के नक्षत्र में है और शनि
शनि जो है 9वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी होकर के 5वें भाव में बैठा है। 3, 7, 11 का नक्षत्र है, 3, 5, 9, 11 का उप नक्षत्र है। तो आप देखेंगे अगर 10वें भाव को छोड़ें तो 9वां भाव 5वें को, 5वां भाव 3, 7, 11 को, 3, 7, 11 भाव 3, 5, 9, 11 को मतलब जो है सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत फेवरेबल प्लैनेट है। ये फेवरेबल प्लैनेट जब केतु को सपोर्ट करता है तो उसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। उस समय केतु के 9th भाव को सपोर्ट मिलती है, तब वो 9th भाव सपोर्ट करेगा मैरिज से रिलेटेड इवेंट को। मैं समझता हूं अगर आपको किसी को कोई संदेह है तो वो एक बार आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे चलें। तिवारी जी, ये आपने ये 4, 8, 12 लगाया यहाँ पे, ठीक है ना, जी कस्पल जी स्टार लॉर्ड में। जी जी। फिर इनको लिखने का क्या फायदा हुआ? इनको लिखने का फायदा है सर, हाँ, अगर इससे अनुकूल सपोर्ट नहीं मिलती नहीं, तो अब ये 10 भी तो अनुकूल नहीं है ना। राइट सर। हाँ, तो अब लेकिन 4, 8, 12 को 10 तो सपोर्ट दे रहा है ना। 4, 8, 12 को 10 तो सपोर्ट देगा ना। तो फिर इनको लिखने का क्या क्या लाभ हुआ? यदि हमने केतु की सिर्फ राशि पे ही फोकस करना था, जो सारे इसको सपोर्ट है, वो तो बात ओके है। मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि ये 4, 8, 12 कस्पल स्टार लॉर्ड है और कस्पल सब लॉर्ड 10 है, जो 4, 8, 12 को सपोर्ट करता है, राइट नेगेटिव सर। है, राइट राइट। सर। तो फिर इनको यहाँ पे लेने का क्या लाभ हुआ? सर 9th हाउस सर फेवरेबल हाउस है। सर फेवरेबल हाउस होने के नाते इस फेवरेबल हाउस की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर रहा है 4, 8, 12, 10 भाव। दूसरी बात ठीक सर है। 7th हाउस, सर हम्म। 7th हाउस इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। 7वां भाव इसमें सीधे से शामिल नहीं है। तो उस स्थिति में इसका जो इम्पैक्ट है वो 9वें भाव पर ज्यादा है, न कि 7वें भाव पर। ओके, ओके, सो यू आर टेकिंग इट, आप इसको साथ में से रिलेट कर रहे हो। सर हम मैरिज इवेंट पढ़ रहे हैं सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं, मेरा तो क्वेश्चन सिंपल था ना, ये कि नहीं 9 नहीं, के साथ आपने ये आपकी रिलेट किया बात था ना। मैं जी आपने मेंशन नहीं किया कि हम बेसिकली हमारा स्ट्रेस 7वें हाउस पे है। तो आप 9वें को केतु से रिलेट कर रहे थे ना, केतु की सिग्निफिकेशंस बता रहे थे, तब मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि 4, 8, 12 नेगेटिव हाउसेज हैं, 10 उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो 7वें से इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इनका कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा। मैं समझ आ गई बात। राइट सर। सर दूसरे मैं ये भी कहना चाहता था सर, इस मामले में मैं आपकी बात को और थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं कि हम जिस समय हमने घटना के लिए हमने कहा था, मैंने सर 7वें भाव से शुरू किया है कि मार्स, शनि और सन, हम उसके मतलब जो उसकी डेस्टिनी है इन तीनों ग्रहों से संबंधित है। लेकिन हम दो तरीके से देख सकते हैं कि एक तो हम सीधे ही शनि मतलब जो है ना सन को सीधे पर पढ़ लें। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इस चार्ट की शादी से संबंधित घटना के लिए ग्रहों की सामर्थ्य का आकलन कर लें। तब उसके बाद हमें हमारे लिए सीधा हाँ और ना करना रह जाएगा। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आपको, चूंकि आपके मुझे मेरे मन में ये रहा कि पहले आपको अनुकूल और प्रतिकूल का आभास हो जाए, हाँ, तब नहीं, नहीं, आपको ठीक। ये सुविधा रहेगी। मैं और ढंग से सोच रहा था, मैं सोच रहा था आप हर प्लेनेट की स्ट्रेंथ बता रहे हो, तो मेरा वो फोकस 7 पे नहीं था। अब आपने 7 के कहा कि ये 7 के रेफरेंस से है, तो जी ओके है। कुछ जी। कुछ समझ आ गई बात, 7 के रेफरेंस से है, देन इट इज ओके। यही सर। सर मैंने मतलब बल्कि स्टार्ट में भी कहा था थोड़ा सा कि आपने प्लानिट कहा के था, वो तो आपने कॉन्फ़िगरेशन। कहा था, जी लेकिन वो बीच में कोई बात कोऑर्डिनेशन नहीं नहीं हो सर, पाया मैं इस क्षमा बात पे। चाहता हूँ सर, मुझे बोल देना चाहिए था, मैं जी, क्षमा जी, चाहता हूँ इसके जी, लिए। जी, 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 सो नाइस लेकिन ऑफ यू इसे सर। 7वें भाव के परिप्रेक्ष्य में ही मतलब जो है ना इन भाव संबंधों को 7वें भाव के परिप्रेक्ष्य में ही मतलब पढ़ने का प्रयास करें, जी, ऐसा जी, मेरा हाँ जी, शौक। आप ठीक है सर, आप नाउ इट इज ओके। राइट। अब सर शुक्र, शुक्र पहली बात तो फ्री प्लैनेट है, इसके नक्षत्र में कोई ग्रह यात्रा नहीं कर रहा है। तो शुक्र अपने आप में ही सक्षम है अपने इस भाव का फल देने के लिए, या ये कहिए अपनी स्ट्रेंथ के लिए। पहले तो सेल्फ स्टैंड में शुक्र पहले और छठे भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा है। तो छठे भाव को लगन सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर कोस्पल सब लॉर्ड जो है इसका उप नक्षत्र है वो चौथा भाव है। तो चौथा भाव
छठे भाव को सपोर्ट तो करता है, लेकिन इन दोनों के बीच में लगन अपने आप में ब्रेक है, तो ये मिक्स प्लैनेट है। और लगन के लिए हमें हमें एक बात ये हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जब हम लगन के स्वामी के भावों को पढ़ते हैं तो लगन अपने आप में सक्षम है, क्योंकि लगन है अपने आप में सक्षम है किसी भी ग्रह के जो उसको सपोर्ट कर रहा है उसके भावों को, चाहे वो अनुकूल है या प्रतिकूल है, उन्हें स्वीकार करने के लिए इसकी ग्राह्यता, लगन की ग्राह्यता सर्वाधिक होती है। तो ऐसी अवस्था में ये मिक्स प्लैनेट है, लेकिन अगर इसे कोई भी फेवरेबल सपोर्ट प्लैनेट सपोर्ट कर देगा, उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर केवल इतना सा बोलूं कि शादी के संबंध में अगर शनि इसको सपोर्ट कर देता है तो ये पहले भाव का स्वामी होने के नाते इस शनि के सारे फेवरेबल सिग्निफिकेशंस को स्वीकार कर लेगा और इसमें फेवरेबलनेस आ जाएगी। आप मेरी इस बात से मतलब जो है ना पता नहीं सहमत हैं कि नहीं, लेकिन मेरा मतलब शुक्र जो है अपने आप में मिक्स है, और यदि इसे लगन का स्वामी होने के नाते यदि इसे किसी फेवरेबल ग्रह की सपोर्ट मिल जाएगी तो ये फेवरेबल रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर इसे फेवरेबल सपोर्ट नहीं मिलती, सपोज अनफेवरेबल अगर सपोर्ट मिलती है, तो फिर ये अनफेवरेबल सपोर्ट करेगा। अब आ जाइए, तीसरा ग्रह हमारे पास सूर्य है। सूर्य चौथे भाव का स्वामी है, लगन में बैठा हुआ है, पांचवें और नौवें भाव का उप नक्षत्र है और सातवें भाव का उप नक्षत्र है। ये डेस्टिनी प्लैनेट है सातवें भाव का, यानी शादी के भाव का ये उप नक्षत्र है। तो आप देखें इसमें ये पहली बात तो 6, 8, 12 से कनेक्टेड नहीं है। दूसरी बात, ये चौथे भाव का स्वामी है, लेकिन चौथे भाव को आगे के भाव जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इस चौथे भाव को कोई भी अनफेवरेबल भाव सपोर्ट नहीं करता। तो उस स्थिति में चौथा भाव माइल्ड है, एक तरह से बहुत कम ऑब्स्टिकल वाला है, लेकिन 1, 5, 9 और 7 ये फेवरेबल प्लैनेट है। और सूर्य दूसरे लेवल पर यानी नक्षत्र लेवल पर कार्य कर सकता है। ठीक है सर। तीसरा जो है सर, उसके आगे हम चलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी है और लगन में बैठा है, लगन का ही नक्षत्र है और लगन का ही उप नक्षत्र है। तो मून चंद्रमा यद्यपि 2, 7, 11 या उस भाव से संबंध नहीं रखता, लेकिन तीसरा भाव जो पांचवें भाव को और सातवें भाव को सपोर्ट करता है, तो सोर्स प्लैनेट जो है ना सर, स्रोत जो है ना तीसरा भाव है, और इसको कोई अनफेवरेबल हाउस इसे नहीं है इसमें, तो ये फेवरेबल प्लैनेट है, सपोर्टिव है, फेवरेबल है और सपोर्टिव है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा, चूंकि ये लगन का उपनक्षत्र है और लगन से कनेक्टेड है, तो कोई भी अनफेवरेबल भाव अगर इसको सपोर्ट करेगा, अनफेवरेबल ग्रह अगर सपोर्ट करेगा, तो ये उसे भी स्वीकार करेगा। लेकिन इसमें फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं है, तो जो अनफेवरेबल इसको सपोर्ट करेगा वो इसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, इसे अनफेवरेबल टर्न नहीं कर सकेगा। ये इसमें अंतर रहेगा। मार्स सातवें भाव का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है, 12वें भाव में बैठा है और 10वें भाव का नक्षत्र है। यहां भी आपको केतु की तरह ये बात महसूस होगी कि 12वां भाव को 12वां भाव सपोर्ट कर रहा है, फिर फर्दर 10वां भाव सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये डिट्रीमेंटल नहीं है, ये प्रतिकूल नहीं है, ये मिक्स प्लैनेट है। यदि इसे फेवरेबल सपोर्ट मिलेगी, चूंकि स्रोत 7th हाउस है, चूंकि स्रोत जो है 7वां भाव है, और यदि इसे अनुकूल सपोर्ट मिल जाती है तो ये अनुकूलता की ओर बढ़ जाएगा। अगर इसे प्रतिकूल सपोर्ट मिलती है, सपोज इसे अगर मान लिया 2 और 6 या 8, 12 का अगर इसको सपोर्ट मिलता है, तो 7वां भाव 8, 12 की सपोर्ट लेने के कारण अनफेवरेबल इंपैक्ट को प्राप्त हो जाएगा। मैं समझता हूं मेरी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। केतु और मंगल ये दोनों मिक्स प्लैनेट हैं, लेकिन इनका सोर्स 9th हाउस है, इसका सोर्स 7th हाउस है, सो ये मिक्स है। और चूंकि इसकी स्रोत 7 और 9 है, यदि इन्हें पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगी तो ये
पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे। राहु राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, 2-6 का नक्षत्र है और 2 ही 6 का उप नक्षत्र है। ये 2 और 6 कर्माकार का है, 2 6 10 कर्माकार का भावों का समूह है, इसलिए। लेकिन चूंकि छठा भाव उप नक्षत्र है और छठा ही भाव नहीं, छठा भाव नक्षत्र है और छठा ही भाव उप नक्षत्र है, तो ये चूंकि 2 जगह पर मतलब कंटिन्यू आ रहा है, तो इसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो तीसरा भाव इसे अगर फेवरेबल सपोर्ट मिलेगी तो ये रिएक्ट करेगा, लेकिन ये दूसरे लेवल पर यात्रा नहीं कर सकता। या ये कहें कि राहु के नक्षत्र में जो भी प्लैनेट ग्रह करेगा वो यात्रा करेगा, वो फेवरेबल रिएक्ट नहीं करेगा। राहु को सेकंड लेवल पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे आगे अगर हम जाएं, जुपिटर फ्री प्लैनेट है, 8वें और 11वें भाव का स्वामी है, 5वें भाव में बैठा है। तो 11वें भाव का स्वामी है, इसे हमें प्रधानता देनी है। 5वें भाव में बैठा है, 11 और 5वां भाव फेवरेबल भाव है, लेकिन ये 8वें भाव का स्वामी है, 8वें और 12वें भाव का उपनक्षत्र है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये डिनाई नहीं करता तब तक जब तक इसमें 6 का सहयोग न मिल जाए। तो ये मिक्स प्लैनेट है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी है, 5वें में बैठा हुआ है, तो इस फेवरेबलनेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 8वें भाव का स्वामी है, 8 और 12 उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये लगन को तकलीफ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 11 और 5 को भी सपोर्ट करेगा, फेवरेबल भी होगा। तो ये मिक्स प्लैनेट है। शनि अपने आप में एक फेवरेबल प्लैनेट है। ऊपर जैसे हमने पढ़ा था, 9वें भाव और 10वें भाव का स्वामी होकर 5वें में बैठा है, 3 7 11 का नक्षत्र है, 3 5 9 11 का है। तो शनि जो है ना सबसे बेस्ट प्लैनेट है शादी के लिए। शनि के नक्षत्र में कोई भी ग्रह होगा उसे प्रधानता मिलेगी। कि मरकरी 2 5 और 2 भाव का दूसरे 5वें भाव का स्वामी होकर दूसरे में बैठा है, तो मरकरी अपने आप में फेवरेबल प्लैनेट है, ये फ्री प्लैनेट है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये केतु प्लस माइनस है, वीनस प्लस माइनस है, सन फेवरेबल है, मून फेवरेबल है, मार्स प्लस माइनस है, राहु अनफेवरेबल है। राहु अनफेवरेबल है चूंकि ये 6th का नक्षत्र है और 6th का ही उपनक्षत्र है। जुपिटर जो है ना वो भी मिक्स है, और सैटर्न जो है फेवरेबल प्लैनेट है। तो अगर इसमें हम देखें, पहले सैटर्न, फिर मरकरी, फिर मून, उसके बाद केतु हमारे, और आखिर में वीनस जो है ये फेवरेबल है। और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो अनफेवरेबल है। राहु जिस मिक्स प्लैनेट को सपोर्ट करेगा उसके फेवरेबल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। शनि जिस ग्रह को सपोर्ट करेगा उस ग्रह की फेवरेबल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करेगा। मैं समझता हूं आपको सेल्फ सिग्निफिकेशन की क्लियरेंस महसूस हुई होगी इस पर्टिकुलर उससे, और इसमें ये निशान करके ये भी मतलब जाने क्लियर कर दिया है। जैसे केतु, वीनस, मार्स और जुपिटर जो है ये मिक्स हैं, अगर इन्हें सैटर्न की सपोर्ट मिल जाएगी, इसे सन की सपोर्ट अगर मिल जाएगी, तो उस स्थिति में ये ग्रह पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। लेकिन यदि अनफेवरेबल सपोर्ट मिलेगी, सपोज राहु की सपोर्ट अगर इनको मिलती है, तो ये अनफेवरेबली भी रिएक्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम इसको अगर अब हम डेस्टिनी की तरफ जाएं, तो मार्स जो है अपने आप में जो भाव स्वामी है, मार्स जो है वो 7 और 12 का स्वामी है। हमने पहले भी पढ़ा है, मार्स जो है ना प्लस माइनस है। मार्स जो है सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य फेवरेबल प्लैनेट है। सूर्य मून के नक्षत्र में है, मून फिर से एक फेवरेबल प्लैनेट है। सैटर्न सबलोड है जो फिर उसका फेवरेबल प्लैनेट है, और सैटर्न जो है ना सन के नक्षत्र में है, सन भी फेवरेबल प्लैनेट है। तो यदि आप देखें तो मार्स अपने आप में फेवरेबल स्ट्रेंथ लिए हुए है, नो अनफेवरेबल प्लैनेट इज प्लेइंग।
अब हम इसकी डेस्टिनी पर आते हैं। डेस्टिनी इसकी सूर्य है। सूर्य चौथे भाव का, सूर्य मतलब जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सूर्य फेवरेबल प्लैनेट है, मून फेवरेबल प्लैनेट है, मार्स जो है ना सर इसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, प्लस माइनस है, लेकिन चूंकि मून फेवरेबल है तो इसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ जो है उसे रिड्यूस तो करेगी, लेकिन उसे डिनाई नहीं करेगी, उसे मना नहीं करेगी, कम नहीं करेगी। और बुध जो है वो अपने आप में फेवरेबल प्लैनेट है। तो डेस्टिनी चूंकि फेवरेबल प्लैनेट से रूल हो रही है, तो उस अवस्था में शादी की प्रोमिस करता है, शादी का प्रोमिस करता है डेस्टिनी प्लैनेट होने के नाते। दूसरी बात मुझे इसमें यहाँ ये भी कहना है कि क्योंकि इसमें सन, मून, मार्स और मरकरी, सन का सपोर्ट मून को अगर मिलता है तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, सन का सपोर्ट अगर मरकरी को मिलता है तो इसकी सपोर्ट बढ़ जाएगी, सन का सपोर्ट अगर मार्स को मिलता है तो इसकी सपोर्ट बढ़ जाएगी। मैं सपोर्ट के लिए आपको थोड़ा सा वापस चार्ट पर अगर ले चलूं तो मैं यही चार्ट को मैं आपको यहीं पर आपके साथ ही यहीं पर लगा दूं। तो सन सन जो है वो मार्स को सपोर्ट कर रहा है, सन की और मार्स की युति है। सन मून को सपोर्ट कर रहा है, सन की और मून की युति है। सन मरकरी को सपोर्ट कर रहा है वीनस के माध्यम से, सन इन द साइन ऑफ वीनस कंजॉइंड विद द मरकरी, राइट सर। तो डेस्टिनी इज प्रोमिसिंग फॉर मैरिज। अब इसमें सेकेंडरी प्लैनेट है राहु, मून का सेकंड प्लैनेट है राहु जो अनफेवरेबल है। तो डेस्टिनी का अनफेवरेबल प्लैनेट है राहु। तो हमें अगर इसमें हमें अब हम इसकी दशा भुक्ति का अगर हम विचार करेंगे तो ऐसी अवस्था में अगर आप देखें तो हमारे पांचों रूलर्स जो हैं वो इसमें फेवरेबल हैं। जो प्राइमरी, इसमें हम क्या बोलते हैं कि मून प्राइमरी रूलर है, मरकरी प्राइमरी रूलर है, मार्स सेकेंडरी रूलर है और राहु सेकेंडरी रूलर है। चूंकि राहु सेकेंडरी रूलर है तो इसका इम्पैक्ट सेकेंडरी है। राहु जिस ग्रह को सपोर्ट कर रहा होगा, जब उस ग्रह की दशा में इस राहु की भुक्ति होगी तो ये निश्चित रूप से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन चूंकि दशा न चूंकि डेस्टिनी पूर्णतया अनफेवरेबल को नहीं रखती है तो इसलिए वो केवल परेशानी तो दे सकता है, लेकिन मैरिटल लाइफ कुल मिलाकर के हैप्पी मैरिटल लाइफ है। मैं समझता हूं यहां तक आपको बात मेरी क्लियर हुई होगी। यदि आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कृपया पूछ सकते हैं। आगे चलें सर। हाँ जी सर, प्रोसीड करो आगे आप। ठीक है सर। अब हमको दशा चाहिए, मैरिज के लिए दशा चाहिए। तो यदि हम दशा से जाएं तो उसकी मैरिजेबल एज जुपिटर। यस सर, यस सर, यस सर। उसकी मैरिजेबल एज जुपिटर दशा, जुपिटर भुक्ति से शुरू होती है। तो अब हम जुपिटर भुक्ति पर अगर जाएं तो हमको पहले जुपिटर दशा का आकलन करना होगा। सॉरी, क्या जुपिटर की दशा शादी देने के योग्य है या नहीं। हम यहाँ पर केवल जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस मामले में जो अनफेवरेबल प्लैनेट है उसका जो उपयोग है जहां जहां पर हम उसके हिसाब से कुछ प्लैनेट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन मैं चूंकि इसलिए आपको मतलब ये उस रास्ते से नहीं ले जाता हूँ, शॉर्टकट है जरूर, लेकिन वो हमें प्रॉपर सिग्निफिकेशन को जज करने का अवसर छीन लेता है।
तो इसलिए मैं आपको सीधे उसी तरीके से लेकर चलूं जो हमें हर एक प्लैनेट के स्ट्रेंथ को जज करने का मौका देगा। तो हमारा की प्लैनेट जो है ना, फेवरेबल की प्लैनेट हमने पढ़े थे कि सन के फेवरेबल की प्लैनेट है, मून फेवरेबल की प्लैनेट है, मरकरी फेवरेबल की प्लैनेट है और मरकरी फेवरेबल की प्लैनेट है और सैटर्न फेवरेबल की प्लैनेट है। इसमें से सैटर्न स्ट्रॉन्ग की प्लैनेट है, सन स्ट्रॉन्ग की प्लैनेट है, उसके बाद फिर मून है और अंत में मरकरी है। मून से मरकरी सर पहले है, क्योंकि मरकरी 2, 5 और 2 का स्वामी है, जबकि मून थर्ड हाउस और लग्न का स्वामी है। तो मरकरी पहले, यानी सन, सैटर्न, मरकरी एंड मून। सर सैटर्न, सर सन प्राइमरी केपी है ना सर, एनी हाउ सैटर्न, सन, मरकरी एंड मून। तो जिस ग्रह के ये प्राइमरी रूलर होंगे वो मैरिज के इवेंट को सपोर्ट करेंगे। हम जुपिटर से शुरू करते हैं, क्योंकि जुपिटर की दशा और जुपिटर की भुक्ति एलिजिबल है शादी के लिए। जुपिटर मिक्स प्लैनेट है, जुपिटर सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य फेवरेबल है। सूर्य मून के नक्षत्र में है, मून फेवरेबल है। उपनक्षत्र मरकरी है, मरकरी फेवरेबल है। राहु अनफेवरेबल सब लोड है। अब दूसरा स्टेप शुरू होता है कि चूंकि इसमें फेवरेबल की प्लैनेट है तो सेल्फ स्ट्रेंथ जो है ना, इट इज फेवरेबल। अब हमें इसमें सपोर्ट देखना है, क्योंकि जुपिटर 8 और 12 का पॉसिबल सब लोड है। तो क्या जुपिटर सूर्य को या मरकरी की स्ट्रेंथ को कहीं रिड्यूस कर रहा है? तो हम उसके लिए सपोर्ट प्लैनेट को वापस नेटल चार्ट से मतलब जो है ना देख सकते हैं। तो जुपिटर सन को, जुपिटर मरकरी को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन सन को इफेक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सोर्स इज गुड, सोर्स इज मिक्स, बट इफेक्ट इज गुड। हाँ जुपिटर सर, मरकरी, यस, या सॉरी सॉरी, हाँ सर, जुपिटर इज एस्पेक्टिंग टू द सन एंड आल्सो टू द मरकरी। तो दैट इज व्हाई फॉर दशा ही इज कैपेबल, बट फॉर भुक्ति इट इज नॉट कैपेबल। फॉर भुक्ति लो, भुक्ति जो है ना, सबसे शादी के लिए सबसे पावरफुल प्लैनेट होना चाहिए जो शादी को एग्जीक्यूट करा सके। तो ऐसी अवस्था में हमें ये देखना होगा क्या जुपिटर से ज्यादा सामर्थ्यवान प्लैनेट है जो अपनी भुक्ति में देगा। यदि जुपिटर से अधिक सामर्थ्यवान प्लैनेट नहीं है तो जुपिटर अपनी ही भुक्ति में शादी दे देगा। जुपिटर के बाद शनि, शनि फेवरेबल प्लैनेट है, सूर्य के नक्षत्र में है, फेवरेबल प्लैनेट है। मून के नक्षत्र में, मून उपनक्षत्र सन का नक्षत्र है, फेवरेबल प्लैनेट है। और सब लॉर्ड वीनस है। वीनस 1, 6, 1, 4 है, लेकिन वीनस 1 and 1 मिक्स प्लैनेट है। मार्स के नक्षत्र में है, मार्स का 7th हाउस को सपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में सैटर्न जो है दे सकता है, लेकिन क्या सैटर्न बाकी को सपोर्ट करता है, ये हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वीनस को सैटर्न का अगर सपोर्ट मिल जाता है या सन का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो उस वीनस की अनफेवरेबल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। तो यदि आप यहाँ पर देखें, सन वीनस के साइन में है और वीनस को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से सैटर्न मरकरी के साइन में है, सैटर्न मरकरी को सपोर्ट कर रहा है। तो उस स्थिति में वीनस जो है ना, यानी शादी, सन जो है वो फेवरेबल प्लैनेट है और ये सन इस वीनस को सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के सैटर्न फेवरेबल प्लैनेट है, सैटर्न भी शादी दे सकता है।
इसमें हाँ रूलर लिंक सर, वो मुझे इसलिए क्योंकि मैं उलझन नहीं बढ़ाना चाहता था इस पर्टिकुलर उस पर, लेकिन ये एक बेहतर चांस है, इसलिए मैं ये भी हम एक रूलर लिंक का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। रूलर लिंक क्या है? सैटर्न नहीं सॉरी सन और वीनस, सन जो है और वीनस जो है सैटर्न के रूलर हैं। ये सन वीनस को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि सन वीनस की राशि में है, तो इसे हम रूलर लिंक करके बोलते हैं। सन इज फॉर्मिंग रूलर लिंक विद द वीनस एंड इंक्रीजिंग देयर फेवरेबल सपोर्ट, फेवरेबल स्ट्रेंथ। सैटर्न सैटर्न जो है ना वो 10th स्टैंड से मरकरी को देख रहा है और वीनस को देख रहा है, तो वीनस जो है लगना लोड होने के नाते सैटर्न के फेवरेबल स्ट्रेंथ को जो है ना एक्सेप्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो इस तरह से सैटर्न कंपेरेटिवली बंद कर दें। इस तरह से अगर आप देखें तो जुपिटर के मुकाबले में सैटर्न एक फेवरेबल प्लैनेट है, मोर मोर फेवरेबल प्लैनेट है देन जुपिटर। आगे चलते हैं। इसके बाद आइए मरकरी। मरकरी फेवरेबल प्लैनेट है, लेकिन मरकरी इन द स्टार ऑफ राहु। राहु चूंकि 6 और 6 का नक्षत्र है और 6 का उपनक्षत्र है, और साथ में जुपिटर सब लोड है, तो जुपिटर राहु 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 जुपिटर इज एस्पेक्टिंग टू मून, मून रिप्रेजेंटिंग राहु, तो दैट इज वाई राहु इज हैविंग इनडायरेक्टली मतलब थ्रू सॉरी जुपिटर 8 12 राहु के साथ मून के माध्यम से। तो इस तरह से मरकरी सोर्स में फेवरेबल प्लैनेट है, लेकिन राहु और जुपिटर की जो यानी नक्षत्र और नक्षत्र जो है वो सपोर्ट नहीं करते, तो मरकरी हम रिजेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेट में। इसके आगे अगर हम चलें तो केतु। केतु यस सर, यस सर। केतु 9th भाव का स्वामी होकर के ये मिक्स प्लैनेट है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सैटर्न इज सपोर्टिंग टू इट, लेकिन सैटर्न के 9th भाव को मून सपोर्ट करता है, नो अनफेवरेबल, यानी 4 8 12 की स्ट्रेंथ को सपोर्ट नहीं करता मून। इसके बाद मून इन द स्टार ऑफ मार्स। मार्स चूंकि मून में कोई अनफेवरेबल नहीं है, तो 7th हाउस इज सपोर्टिंग टू द मून एट सब लॉर्ड इज मून अगेन, तो केतु इज द स्टार एंड सब ऑफ मून, तो केतु भी फेवरेबल है। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है बशर्ते इसको इनका सपोर्ट मिले, लेकिन सोर्स 9th हाउस है, स्टार लॉर्ड 311 है और सब लॉर्ड 311 है, ये फेवरेबल है। मार्स जो है ना प्लस माइनस है इसमें, लेकिन सेकेंडरी प्लैनेट है। मार्स मून की स्ट्रेंथ को लिटिल बिट रिड्यूस करता है, लेकिन टोटली अनफेवरेबल नहीं है। लेकिन सैटर्न से अगर आप कंपेयर करें तो केतु सैटर्न से कमजोर है। अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि सैटर्न इन सबको सपोर्ट कर रहा है और ये सब फेवरेबल प्लैनेट हैं, यहाँ पर सैटर्न की प्रेजेंस डायरेक्ट नहीं है, दूसरे सन की प्रेजेंस डायरेक्ट नहीं है। जुपिटर में सन की प्रेजेंस डायरेक्ट है, सैटर्न में सन की प्रेजेंस डायरेक्ट है। सन प्राइमरी कॉस्पल सब लॉर्ड है। इसके बाद हम वीनस में अगर आ जाएं तो वीनस मिक्स है, मार्स अगेन मिक्स है, सन सेकेंडरी प्लैनेट है और वीनस अगेन फिर मिक्स है, तो वीनस इज नॉट कंपिटेंट टू गिव, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। सन सन फेवरेबल है, मून फेवरेबल है, मरकरी फेवरेबल है, तो ये हमारे लिए, तो हम इसे वेटिंग लिस्ट में
रख सकते हैं। लेकिन इसमें राहु राहु जो है सब लॉर्ड है, और राहु इनके साथ मून के कारण संबंध बनाता है, तो इसमें वीकनेस मतलब जो है ना बीच में आ जाती है। आगे चले तो मून है मून जो है फेवरेबल है, मार्स मिक्स है और राहु अनफेवरेबल है, तो मून इज बीइंग रिजेक्टेड। राहु सपोर्ट जो है ना टू द मार्स मतलब जो है ना विल मेक इट नेगेटिव। मार्स अपने आप में हमने डेस्टिनी के टाइम पर पढ़ा था, तो मार्स जो है ना अपने आप में फेवरेबल प्लैनेट है, सन फेवरेबल है, मार्स इन द सेंस मिक्स है आई मीन, लेकिन मार्स इन द स्टार ऑफ सन फेवरेबल है in the sub of Saturn. This Saturn is forming a ruler link with the Sun as well as with Mars. तो Mars is also favorable है, और Sun primary planet is also playing there. The role of Saturn और Sun both are available here. राहु राहु सैटर्न के नक्षत्र में है, सन के उपनक्षत्र में है, लेकिन राहु राहु अब हमें जो 2 और 6 का अनफेवरेबल इम्पैक्ट है, क्या वो इम्पैक्ट इसको जाता है? तो चूंकि अनफेवरेबल सोर्स है तो उसको सपोर्ट करती है फेवरेबल, लेकिन क्या इनसे कंपैटिबल है? तो ये हम इसको अगर देखें तो उसी स्थिति में राहु का रोल, राहु डेस्टिनी का नेगेटिव प्लैनेट है, तो दैट इज व्हाई इट कैन नॉट प्ले, इट शुड नॉट प्ले। तो अब हमारे पास जो फेवरेबल प्लैनेट निकल करके आए हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स है। एक मिनट, जुपिटर है, सैटर्न है, जुपिटर है, जुपिटर सैटर्न बुद्धि 1 मिनट 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, जुपिटर है, सैटर्न है, सैटर्न में सर मार्स मार्स जो है ना मार्स Mars Antra is there. No? सर इट शुड मार्स नो, Mars is there, no, sir. 12, Yes. 10, 2002, 8 to 5, 12, 2000. That is the one, no? यस सर यस सर यस, Yeah. 3 बार 2 बार, यस सर यस सर यस सर यस सर यस, 3/12 2008, यस यस सर। तो हिज मैरिज वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग जुपिटर दशा सैटर्न भुक्ति मार्स अंतरा। यहाँ पर इंटरलिंक थ्योरी जो है ना एप्लीकेबल है। सन और सैटर्न, सन इज डेस्टिनी प्लैनेट, सैटर्न इज सपोर्टिंग प्लैनेट, उस रोल ऑफ सन एंड सैटर्न, so in Jupiter sun is playing, Saturn is in support, in Saturn sun is playing, Jupiter is in support, in Mars sun is playing, Saturn is playing, Jupiter is in support. All 3 planets are interlinked through the rulers. Jupiter is not competent in his bhukti to give, because Rahu role is available. Saturn is free from Rahu. So Saturn bhukti is more competent than Jupiter. I hope आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। तो मुझे इसमें आपको 3 चीजें मतलब जो है ना बतानी थी। पहली अरे इसमें तिवारी जी एक बात बताइए आप कि सैटर्न का अंतरा क्यों नहीं लिया? सर सैटर्न का अंतरा इसलिए नहीं लिया कि सैटर्न भी सर केतु से इफेक्टेड है, केतु वीकनेस रखता है। दूसरी बात, मून का सेकंड प्लैनेट राहु है, राहु भी इफेक्ट रखता है सर, इसलिए जो है ना सर सैटर्न सबसे स्ट्रॉन्गर भुक्ति होने के बावजूद भी सर। तीसरी बात जो है ना सर ये था कि इसमें 7th हाउस का रोल
मार्स का रोल मतलब जो है ना हमको चाहिए था, क्योंकि ये भाव स्वामी है 7वें भाव का। नहीं सर, इसमें आप ये देखो जी कि केतु आपका मार्स में भी है ना। जी जी। केतु केतु देखिए आप, सब लॉर्ड का राशि लॉर्ड है, मार्स में भी है, केतु यहाँ पर भी है। ठीक है, राहु वहां पर भी है, राहु यहाँ पर भी है। तो मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि जी सर। दोनों की स्ट्रेंथ का आपने आंकलन कैसे किया कि मार्स ही होना चाहिए। डेट पता हो वो अलग बात है, कि हम नहीं बता नहीं ही सकते हैं क्या है। नहीं मेरा नहीं, उसका क्वेश्चन ये कारण है, है सर। जब दोनों में केतु और राहु है, वहां भी राहु और केतु है, तो दोनों में कहाँ अंतर पड़ा कि सर हमने सैटर्न का अंतरा नहीं लिया। सर उसका कारण है सर। मैं हाँ जी, हाँ मतलब जी। क्या है सर। वही जरा क्लियर हो जाएगा और आप राइट इसको सर, नहीं क्लियर नहीं कर नहीं नहीं दीजिए। सर, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा सर आपको मतलब जो है ना संतुष्ट कर सकूं इस मुद्दे पर। सर सैटर्न सोर्स है यहाँ पर, मार्स में सैटर्न सब लोड है सर। सैटर्न का इम्पैक्ट सन पर है, तो चूंकि सन का सब लोड वीनस जो है, इट इज लिटिल बिट वीक। तो टू कंप्लीट दी चेन वी वांट अनोदर, इस चेन को कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरा ग्रह चाहिए। सैटर्न, वीनस, सन, वीनस। वीनस जो है ना सर, इट इज नॉट कंप्लीटली फेवरेबल, इट इज मिक्स, बट इट इज गेटिंग सपोर्ट ऑफ सन एज वेल एज सैटर्न। So that is why it is not completely capable to give in its antara, like Jupiter is not capable to give in its bhukti. That is why Mars is has been, sir. ओके ओके। Here, if you see Mars and Sun, Saturn is passing to its support to the Sun as well as to the Mars. जी Right, sir? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक धन्यवाद। और कोई किसी भाई को मतलब जो है ना ऐसा लगा हो? सर प्लीज एक बार रूरल लिंक अच्छे से बताइएगा तो। जी जी। रूरल लिंक बताइएगा तो। रूरल लिंक को कैसे देखेंगे हम इसमें? रूरल लिंक तो Ruler's link is asking. Shivaji, why अच्छा you अच्छा। have closed that chart, no? That you have not talked about the 2 or 7 or 11 not signified by the Saturn. If you take as per KP that Saturn, Saturn cannot be taken as the Buddhi Lord. Very important thing, Yes sir. sir. For the point of difference मतलब between KP and Yeah, EPS. because if you take as per KP, if you take Saturn only, Saturn is 9th lord, 10th lord occupying 5th house. Because CST, CSL, they do not take in signification. Saturn and the star of Sun, 4th lord occupying 1, and sublord is Venus, 1, 6, and 1. That is a free planet, untenanted planet. It is very strongly signifying 1, 6, 1. And sublord, star lord of the sublord is 7, 12, and 12. So if you take that Saturn signification 9, 5, 4, 1, 1, 6, 1, it is not taking, it is not signifying 2 or 7 or 11 in its CL OCC as per 4. Fourfold significator as KP significator. When you do not consider this, these significations are not indicating 2 or 7 or 11. So if you take as per KP, you will not select Saturn as the significator or capable to conduct the marriage. But Saturn is the strongest planet, right, sir? But if you take Mercury, Mercury planet is 252, star lord is Rahu occupying third house, sublord is Jupiter 8, 11, and 5. As per KP, if you take Mercury is the strongest significator of 2, 5, 3, 5, 11, right? You can see the significations. But this is not capable, it is weak because Rahu occupying 3, but it is star lord, sublord is not good. And Mercury, Jupiter is 8, 11, and 5 is good, but sublord 8 and 12, these significations are weaker. So if you take as per KP, you will select Mercury. But if you take as per KP, Saturn, you will not select. But Saturn is the one because 1, 6, 1. Normally, people are thinking that 161 is 12th house to the 2 or 7. So it will not favor for the marriage. But being the Lagna Lord, occupying Lagna,
having got the support of the Saturn, having got the support of the Sun, it is getting the support from the good key planets. Other key planets also there in supports. So Saturn is stronger enough because of the weakness at the sub level. Some weakness support only is getting this, giving this. Getting the support, making that Venus is supportive. Because of that, as you rightly said, Mars planet is the planet is it is coming to rescue and completing the chain because Mars has got some weakness in the source. So it is not capable to act as its Bhukti Lord, but at the star, to Antra, in what do you call in Saturn, Bhukti, Mars is capable. Only these three planets are capable. If you take other, chart, no, then, as per KP and all, if you take, you will not be able to select Saturn. That is the important thing I think you should, everyone should understand, sir. Sorry to interrupt, Tiwari. So, No, sir. yeah, so It I think needs to be clear, sir. yeah, so that they should, why Saturn is better? Why not Mercury? Why not other planets, right, sir? If you take, suppose if you go to KP significator in the view horoscope, you can go to the KP significators, then you will not be able to find Saturn is signifying only fifth house. Okay, but 5 is fine only. But why not? Why not other planets having got 7 or 5 or 11, 2, they have not supported for the marriage? Why Saturn? Though Venus at the sublevel has got some weakness, the importance of the support planets, keep planet in supports and forming ruler wheel. That's what Kusum Madam was, I think, asking. Fill this again, no? Sorry, Madam. Yes, I'm asking this only कि rural link का कैसे इसको connect करेंगे अगर हम उसके through तो वो You keep open that birth chart, Tiwari. Yeah, that one also. Keep open the birth chart. Then, or you can have that control B also. No. You show that Saturn planet and open the birth chart. Right. Yeah. So, yeah. Little bit. Yeah. Keep the birth chart open. Yeah. Now you explain. Then she will understand. Then keep that self-significators table also. रूलर लिंक्स मैडम हमने कल बताया था इस मामले में, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, वो प्लैनेट जो किसी ग्रह को सपोर्ट करने के साथ साथ यदि उसका रूलर भी है तो वो लिंक जो है रूलर लिंक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आपने सैटर्न की बात कही, सैटर्न मरकरी के साइन में है, जुपिटर से कंजाइंड है, और अब हम सन, जुपिटर सैटर्न जो है ना इज एस्पेक्टिंग टू मरकरी, जी राइट मैम? जी सन इज कंजाइंड विद, सन इज in the sign of Venus. Saturn is aspecting to the Venus. Venus is the free planet. So impact over the Venus is more over the Sun, Moon, and Mars. Rulers of the Saturn are Sun and Venus. Saturn is aspecting to the Venus. Sun in the sign of Venus. Sun is having Venus, free planet, significant sign link with the Venus. So that is why through Venus, Sun is getting Saturn. Venus itself is getting Saturn. So this is forming the ruler link. This is called a ruler link. This link is where two planets, for example, Jupiter, Saturn is conjoined with it, but Saturn is not playing here. Let us see 1 minute. Saturn in sub of Saturn only. Okay. Jupiter in sub of Saturn. Here you can see Jupiter is in the sign of Mercury, in the star of Sun, sub of Mercury, but sub of Saturn. So Saturn is the ruler for the Saturn is the ruler for the Jupiter. This Jupiter is conjoined with the Saturn. So accordingly, Saturn is forming ruler link with the Jupiter. Clear, madam? Yes, sir, clear. It's clear. Thank you, sir. Thank you.
Mercury is having Jupiter. Jupiter is not aspect. Yes, you kindly see Mercury is own sign. Jupiter also influencing to the Mercury. In other words, मैं कह सकूं कि जुपिटर मरकरी को सपोर्ट कर रहा है, चूंकि जुपिटर इन द साइन ऑफ मरकरी सपोर्ट प्लैनेट है. दिस जुपिटर इज प्लेइंग एज ए रूलर. तो मरकरी इज हैविंग जुपिटर विद रूलर्स लिंक. Mercury and Jupiter is forming a ruler link. Okay, thank you, sir. Yeah, understand. Yes, sir. Right, madam? Yes, sir, understand, sir. ठीक है मैडम. Okay, thank you, sir. नहीं मैडम, क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, तो वो फिर आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा. दैट इज व्हाई आई एम डूइंग. जी सर, जी. और कोई आप पूछना चाहें तो, कोई संशय अगर है तो आप पूछ सकते हैं. अगर हम शॉर्टकट अगर इस्तेमाल कर रहे होते तो मैं इसे एक सीधे शब्दों में बोलूं, सन इज द प्राइमरी फेवरेबल की प्लैनेट. It is playing in the Mars, Jupiter, and Saturn as a second planet, as at the second level. One more planet perhaps is having Sun, Mars, 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 Mars. Okay, only Jupiter, Saturn, and Mars is having Sun as a primary ruler, second level. Out of 9 planets, these 3 planets are more stronger than other planets. Reason being, primary planet is supporting to the source. This sun is being supported by the moon, which is another favorable planet. Saturn is the first planet which is favorable and supporting. This Saturn, Jupiter, and Mercury are having interlinked connection. So this is called pilt connection, madam. When we, so I should show one more thing, please. गड़बड़ करता है सही. Field, you want to go to field? Sir, it is actually this row, it is making problem to me. Oh, no, it is coming directly on this, sir. No, it's closed. 1 minute. Our software is having this table. This is called a pilt table. We are having all the 9 planets here. When we tick this, suppose Sun is the primary planet. So wherever Sun is playing, wherever Sun is giving its support, it is indicating here. We can easily find that which planet is having Sun as a ruler. Second, Saturn. Saturn was another favorable planet. We can check where Saturn is playing as a ruler. You can see Mars is having Sun and Saturn both favorable planet as a ruler. Saturn is in the star of Sun, both are the favorable rulers. Then Mercury. Mercury because it is free planet, so that is why it cannot play at the second level, but it can play at the sub level or the first level. Jupiter is having this Sun and Mercury. Saturn is playing in this support. Mercury is having Saturn's support. So this software will give us this particular help to find out these things. Fourth, another moon was the favorable key planet. If we can see
Jupiter is having Sun, Moon, and Mercury. Saturn is in support. Saturn is having Mercury, Saturn, Sun, and Moon. Mercury is in support. Here, Venus is having Mercury in support. Sun is having, or Mercury is having Sun. If Mercury is having Sun, so Mercury, Venus is getting. Further, Saturn is aspecting to the Venus. So this, because this is the planet, source planet, this is trying to give support to their rulers. So that is why Venus, despite mixed planet, get the support of the Saturn. This Saturn is favorable, so his unfavorable strength is reduced. Further, Mercury, which is totally favorable planet, Venus in the sign of Mercury, this Mercury gave his favorable support. मेरा मतलब हिंदी में बोलूं सर, सन चूंकि मुख्य प्लैनेट है, यानी सोर्स प्लैनेट है, स्रोत प्लैनेट है, तो ये ट्राई करता है, और मरकरी के साइन में है, तो मरकरी और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, फेवरेबल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। तो ये सैटर्न और मरकरी जो है ना, वीनस को सपोर्ट दे रहे हैं, तो इसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ जो है इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय द मरकरी एंड सैटर्न, बोथ आर फेवरेबल की प्लैनेट। बिसाइड्स सन इज आल्सो गिविंग सपोर्ट, मून इज आल्सो गिविंग सपोर्ट। मेरा मतलब सन भी सपोर्ट कर रहा है, मून भी सपोर्ट कर रहा है। तो मून इज फॉर्मिंग रूलर लिंक विद द सन। सन इज हैविंग मून इन सपोर्ट, आल्सो रूलर। Similarly, Venus is having Moon, Saturn, and Mercury in support. Saturn is playing as a ruler. So that is why these are interlinked with each other. इनका आपसी संबंध है। तो हमारा जो फील्ड कनेक्शन है वो आपस के संबंध के आधार पर, मतलब जो है ना, भी सत्यापित करता है कि जब तक ग्रहों का आपसी संबंध नहीं होगा तब तक वो घटना को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ये फील्ड कनेक्शन ठीक सर, ठीक सर, ओके सर, थैंक यू, क्लियर। थैंक यू मैडम। आप में से और कुछ इसमें से पूछना चाहें? अभी तो हमारे पास टाइम है आधा घंटे का, लेकिन आधा घंटे में सर चार्ट पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं एक चार्ट और आपको दिखाना चाहता था, लेकिन मैं समझता हूँ उसे अगले सेशन में आपको दिखाया जाए। इस सेशन में आप इसके अलावा और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उस चार्ट में भी Any doubt, anything, I think they can ask, no, sir. यस सर, Yeah. उनके कोई भी संशय अगर हैं तो वो तब तक इस समय का उपयोग कर सकते हैं, मुझसे भी, नहीं तो सीधे आदित्य काशीनाथ जी से पूछ सकते हैं आप। आपका अगर कोई और संशय है इन पर्टिकुलर अभी तक की स्टेजेस तक, हमने प्लैनेट का सेल्फ सिग्निफिकेशन पढ़ा, फेवरेबल अनफेवरेबल पढ़ा, हमने सपोर्ट प्लैनेट पढ़ा, हम एक ग्रह को किस तरह से पढ़ें, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, हमने उसको प्रैक्टिकली पढ़ा। अब हम किसी भी चार्ट को पढ़ने की स्थिति में आ गए हैं, तो आगे भी, मतलब जो है ना, मैं अगले सेशन में एक चार्ट आपको और अलग से नया पढ़कर, मतलब जो है ना, कोशिश करूंगा पढ़ने की। इन बिटवीन आप जो भी प्रश्न करना चाहें वो कर सकते हैं। असल में बीच में चार्ट जो है ना, अगर मैं मान लिया शुरू करता हूँ, वो पूरा नहीं होगा, उसे लटका करके वो न, कल फिर मुझे दोबारा मतलब उसको पूरा करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि उसे कल ही पूरा चार्ट डिस्कस किया जाए। मेरे प्रयास करने के बावजूद भी मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। Yes. स्पीड इज ओके सर, राइट। Okay. यू आर नॉट फास्ट। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, स्पीड भी ठीक है और आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है और वो सारी बात समझ में आ गई है कि सर, है मैं क्या। बहुत नहीं, बहुत बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। इट इज हाईली अप्रिशिएबल एंड आई थिंक कि द वे यू हैव डिस्क्राइब्ड इट, वो लगभग
अब बिना प्रैक्टिस के तो पता नहीं चलेगा, लेकिन लगभग समझ आ गया कि है क्या कुछ है। जी सर। और साथ साथ में जो है वो मार्क भी करते रहे ना, 1 2 3, उससे जरा ज्यादा और क्लैरिटी हो जाती है। जी अब सर। आप सर इस पे प्रैक्टिस करो कि 1 2 3 कैसे लेना है, ठीक है ना। जी जी चार्ट जी। करते हो तो उससे और कन्वीनियंट हो जाता है कि इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा सर संक्षिप्त में बोलूं सर, हमें सर कुछ जो लगन के फेवरेबल भाव हैं, लगन, दूसरा भाव और 11वां भाव, इनको हमें ध्यान में रखकर चलना है। जब सोर्स पर पहला भाव अगर है तो वो हर तरह के भाव को लेने में सक्षम है, क्योंकि एक्सपीरियंस लगन को ही करना है। दूसरा भाव वेल्थ का भाव है, अगर आप उसे हेल्थ के लिहाज से अगर छोड़ दें तो दूसरा भाव लगन के लिए फेवरेबल अनुकूल भाव है। 11वां भाव जो उसके लाभ का भाव है ये फेवरेबल है। तो जो प्राइमरी हमारा मूल भाव है उसके साथ हमें इन 1 2 11 भावों के जो स्रोत में आते हैं उन ग्रहों को ध्यान दे करके हमें पढ़ना है, क्योंकि वो अगर अनफेवरेबल भी रखते हैं तो वो मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि फेवरेबल भाव की शुरुआत से वो चलते हैं। तो हमें स्रोत पर थोड़ा सा ध्यान मतलब रहना रखना होगा, ताकि जैसे अभी इसी केस में आपने पढ़ा देखा होगा कि केतु 9th भाव का ऑक्यूपेंट होकर के आगे बढ़ा। लेकिन अगर मैं इस बात को कहूं कि अगर 9th, अगर आप इसे जॉब के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो 9th भाव अनफेवरेबल है, यानी नॉन सपोर्टिव है टू द इवेंट, बट इट इज सपोर्टिव टू द लग्न। 9th भाव 1 5 और 9 भाव लगन के अनुकूल भाव हैं, लेकिन 9th भाव 10वें भाव का 12वां भाव है। तो वो 9th भाव तब तक अनफेवरेबल नहीं होगा जब तक लगन के प्रतिकूल भाव उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ केतु यात्रा करता है, 9th भाव का ऑक्यूपेंट है और 4 8 12 का नक्षत्र है, 10वें भाव को चला गया है। तो 10वां भाव कोशिश कर रहा है, लेकिन अकेला 10वां भाव कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 9th 9 4 8 12 9 8 12 भाव ऑलरेडी उसमें मतलब जो है ना अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा चुके हैं। तो 10वां भाव से रिड्यूस करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन जब हम उसके नक्षत्र को पढ़ेंगे, अगर नक्षत्र का भाव फेवरेबल हो और उस केतु को सपोर्ट करे तो उस स्थिति में उसकी इंटेंसिटी को, अनफेवरेबल इंटेंसिटी को कम कर देगा, लेकिन वो फिर भी अनफेवरेबल रहेगा। बेहतर ये है कि उसमें फायदा क्या हुआ कि केतु चूंकि फ्री प्लैनेट है तो वो दूसरे स्तर पर यात्रा नहीं करेगा, यानी उसके नक्षत्र में कोई ग्रह यात्रा नहीं करेगा, इसलिए कोई ग्रह उस अनफेवरेबल इम्पैक्ट को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये एक अच्छी बात। तो हमें इस मैनर में किसी भी ग्रह को पढ़ना चाहिए। हमें गुरु ने हमें 2 चीजें बोला, 2 तरीके से पढ़ सकते हैं आप इवेंट के हिसाब से पहले फेवरेबल जो हाउस हैं उनके सोर्स प्लैनेट को आप पढ़ें पहले, फिर अनफेवरेबल को पढ़ें और उनको वेट करके उनको नंबर दें। दूसरा तरीका यह है कि एक तरीके से जैसे हमने आज पढ़ा, हम केतु से शुरू हुए और मरकरी तक चले गए, तो फिर हमने उनमें से फिर उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ को सिलेक्ट करके फिर उनको नंबर दिया। जैसा भी आपको कन्वीनियंट है आप उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस पर जा सकते हैं। इसका सर आपने कोई पीडीएफ बना रखा है इसका? किसका सर? पीडीएफ, यही जो आज आपने चार्ट डिस्कस किया है, जी तो इसका पीडीएफ बना रखा है कि जिसमें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर दिया हो, ताकि सामने रख के आपका लेक्चर समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। अगर इसका कोई पीडीएफ है और अगर वो आप पीडीएफ डाल दो जो आज का एग्जाम्पल दिया है आपने, तो उससे जब भी कहीं दिक्कत आएगी उसको खोल के देख के पढ़ के आसानी से समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या लिया। यदि आपके अच्छा अच्छा। पास इसका पीडीएफ है तो नहीं सर, वो असल में हमारे बहुत पास, एक मिनट सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप जी जो कहना चाह रहे हैं मतलब उस तरीके से हमारे पास हम उसको सेव नहीं, हमारे कंप्यूटर में चार्ट सेव हो जाता है सर। तो हम जैसे ही उस चार्ट को क्लिक करेंगे तो वो चार्ट ओपन हो जाएगा। तो उस चार्ट को ओपन हो जाने के बाद मतलब जो है ना उसमें जो ये एक्सरसाइज है कि ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है, ये मैनुअली सर करना है। नहीं हालांकि नहीं की वो नहीं प्लैनेट सर। देता है सॉफ्टवेयर, लेकिन सर वो
मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा पर्पस ये था कि सपोज करो एक चार्ट लिया हमने, और उस चार्ट में जैसे आज के चार्ट में मैरिज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, जी सर। ठीक है ना, और जी ये बताया कि जुपिटर की दशा और सैटर्न की यानी भुक्ति हाँ, और मार्स के अंतरा में शादी हो जाएगी। जी ठीक सर। है। जी सर। मेरा पॉइंट ये था कि यदि कोई चार्ट है ऐसा जिसमें एक पर्टिकुलर चार्ट को लेके डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो जी जरा सामने पड़ा हो तो कन्वीनियंट हो जाता है। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर है आपके पास तो वो भेज दीजिए, अगर नहीं है तो इट्स ओके, नो सर, प्रॉब्लम। ये वीडियो जो है ना सर, ये आप अपलोड हो जाएगी सर ग्रुप में, लेकिन ओके सर इसका पीडीएफ नहीं है सर, इस तरह से ओके ओके, पीडीएफ नो नहीं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी या किसी ने पहले कोई एनालिसिस किया हो और एनालिसिस करके चार्ट कहीं किसी मैगजीन में डाला हो, कहीं पे डाला हो, तो ऐसा कोई चार्ट यदि आपके पास है तो उसको जरूर शेयर कीजिए। सर मैं समझ रहा हूँ, आप उसे मतलब एक तरह से इन डिटेल राइटिंग में अगर चाहते हैं ताकि जी वो जी आपको जी हेल्प कर सके। जी जी, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, क्योंकि इनिशियली बहुत सारी चीजों को देख के ही आगे जो करना पड़ेगा ना। जी जी जी, मैं अब समझ रहा हूँ सर जैसे आपकी बात को। जैसे आपने लेक्चर दिया, सब समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सामने एक ड्राफ्टिंग की हुई होगी तो वो कन्वीनियंट रहता है हमेशा, और इजिली उसको ग्रास्प करने के लिए कि कहाँ पे क्या लिया था, क्यों छोड़ा था, दैट्स द पॉइंट। सर हम प्रयास करेंगे सर, मतलब जो है ना जी कोई जी, भी सो नाइस डिटेल ऑफ यू। रिटर्न चार्ट जो है ना हाँ जी, हाँ उसको जी। अपलोड करें, मतलब जो है ना सर के पास अगर होगा तो मैं उसे डिफाइन करके फिर नहीं उसे नहीं, अपलोड करने सर की के कोशिश। पास तो बहुत सारे होंगे जी, उनके पास तो बहुत सारे होंगे। मैं उनके समझ पास रहा तो हूँ। बहुत उनके पास तो बहुत सारे हैं, उनको आप रिक्वेस्ट करोगे तो कोई भी ऐसे अलग अलग इवेंट से रिलेटेड चार्ट्स होंगे, जैसे मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, प्रोफेशन है, हेल्थ जी है, जी जी तो वो जी आसानी से कन्वीनियंट रहता है, आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है, तो उससे और कन्वीनियंस हो जाती है उसको समझने में, जी पढ़ने में। ये जी। पॉइंट है मेरा। नहीं मैं सर अगर कोशिश कन्वीनियंट हो, करूँ। अगर कन्वीनियंट हो, मेरे को लगता है आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये, आप आसानी से जो है सर को कह के रिक्वेस्ट करके उनसे आप जो है ऐसे दो चार चार्ट्स दिलवा सकते हैं। सर मैं कोशिश करूंगा सर, मैं इसके लिए जी बिल्कुल जी कोशिश करूंगा सर। जी जी जी। So that birth chart and the EPS tables are shared in the WhatsApp group. Just now I have shared. So you can check it, sir. Yeah. Birth chart also and EPS tables of all the planets of this chart have been shared in the WhatsApp group. That's fine, sir. So that would make us convenient to know and learn that. So Yeah, it will that's what become much easier. It will I become much easier. understand. That is all. That is all what I I, wanted to convey I understand. to Just I Tiwari ji. take the printout and just I shared the image so जी that जी you जी can take it definitely. जी जी, Yeah. so nice of you, sir. Thank Yeah. you, thank you, Thank you. thank you very much. Thank you. That Thank you is so all much. that is all what I expected. I What I got it, told sir. him. I got it. I That's it. understood. That's जी what जी I जी shared it. Yeah. जी 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 जी। Yeah. Yeah. Thank you so सर much. एनीथिंग मोर सर? नहीं सर, थैंक यू सो मच। सर आज के लिए फिर बंद करना चाहते हो आप, सो सो शुड बी क्लोज सर? जी जी जी, प्लीज कैरी Yeah. ऑन, Thank you so प्लीज much, कैरी ऑन। Thank Tiwari. It's राइट, you. nice session थैंक आपका यू and सो बहुत मच, बहुत we will धन्यवाद सर। थैंक यू आपके see सो you in the मच, सहयोग next से one. सर मुझे संबल मिलता है। थैंक थैंक यू यू सो मैं मच, आपका तहे Thank दिल you. से Thank you. थैंक